Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video we will see unit number 5 language and pedagogy basic concept theories and the teaching methods. But in today's video only we will see some important concepts which are asked in again and again in the set examination or the NET examination. So let's start with the first most important concept. First is that pidgin. Pidgin is a grammatical simplified makeshift होता है language that develop for the basic communication. एक लैंग्वेज जो बेसिक कम्युनिकेशन के लिए डेवलप हुआ था बिटवीन ग्रुप्स लैकिंग अ कॉमन टंग, मतलब समझो कि कोई किसी की कॉमन लैंग्वेज नहीं है. सपोज समवन इज फ्रॉम द कर्नाटका एंड समवन फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड बोथ आर अननोन अबाउट देयर ओन लैंग्वेज. ऑफन फॉर द ट्रेड एंड वर्क दे कंबाइन द vocabulary and make a different dominant language that simplify the structure from the local language and not the native language of its speaker, and they created a new one for the trade and the something for the purpose which is known as a pidgin. ये होता है pidgin language. तो often arise in the colonial trade setting where multiple languages मिल जाते हैं. और structure क्या रहता है pidgin का? feature limited vocabulary, simple grammar and lack of complex sentence. मतलब जोड़ जोड़ के दो लैंग्वेजेस बना के कोई एक लैंग्वेज उन्होंने बनाया. कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है pidgin. इट इज अ सेकेंड लैंग्वेज, स्पेसिफिक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज होता है. क्रियोल इवेल्युएशन व्हेन पिडजिन बिकेम द नेटिव लैंग्वेज. पिडजिन जो है नेटिव लैंग्वेज बन जाएगा. न्यू जनरेशन इट डेवलप इनटू द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड वो क्रियोल बन जाएगा. एग्जांपल अगर दे रहे तो नाइजीरियन पिडजिन स्पोकन बाय 75 मिलियन पीपल एंड टॉप पिस्किन पुष्पा न्यू जेनेवा. नेक्स्ट आता है हमारा क्रियोल. क्रियोल इज अ लैंग्वेज that comes from the simplified version of another language. किसी लैंग्वेज का एक simplified language another version का mix of two or more languages. In Hatai people speak a Creole that's mostly based on the French. मतलब कोई एक नई लैंग्वेज है उसका वेरिएशन हो गया one or more other languages and call it the Creole. It Creole arise from the contact between the both language culture. अलग अलग दो लैंग्वेज को कंबाइन करके एक लैंग्वेज क्रिएट होगा. A Creole language is a subtle, fully developed natural language है ये. जैसे मिक्सिंग द टू लैंग्वेज, दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस मिक्स हो जाएंगी और टिपिकली अराइजिंग अ जनरेशन टू जनरेशन एंड बिकेम द नेटिव टंग ऑफ द कम्युनिटी एंड क्रियोल क्रिएट हो जाएगा. क्रियोल प्रोसेस देयर ओन कॉम्प्लेक्स ग्रामर, सिंटैक्स, एक्सटेंसिव वोकैबुलरी ऑफन ओरिजिनेटिंग इन कॉलोनियल सेटिंग. तो इस तरह से हमारा बन जाएगा क्रियोल. क्रियोल के बाद हम बात करेंगे रजिस्टर की. इन इंग्लिश लैंग्वेज रजिस्टर रेफर करते हैं. रजिस्टर पे क्वेश्चन पे आए व्हाट इज अ रजिस्टर. इट इज अ लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इन द कम्युनिकेशन. जैसे कि हम स्पेसिफिक अलग अलग जगह पे अलग तरीके से बात करते हैं. द 5 मेन टाइप ऑफ द रजिस्टर आर फ्रोजन रजिस्टर, फॉर्मल रजिस्टर, कंसल्टिव रजिस्टर, कैजुअल रजिस्टर. दिस रेंज फ्रॉम द रिजिड अनचेंजिंग लैंग्वेज. These are the 5 main topics. जैसे कि frozen or the static register, language that never change, such as the pledge of the Bible or the wedding vows never change that. So which is known as a frozen, जो बदलता नहीं है ना. समझो हम स्टेज पे हम हमारे प्रिंसिपल के साथ बात करें, we have the different tone. हम हमारे दोस्त के साथ बात करें, we have the different tone. It is a register. Hi buddy, hello, how are you? This like the informal language we use with our friends and family relatives. But sometimes when you are speaking with the elder one, our boss, our principal, that time we change according to the situation. Our language and tone is changed, which is comes under it. तो formal register क्या होगा? Formal register used in the professional, academic or legal setting, featuring the complete sentences and precise vocabulary. कंसल्टिव रजिस्टर क्या होगा? एक स्टैंडर्ड सेमी फॉर्मल टू वे कन्वर्सेशन होगा. जैसे कि कोई डिस्कशन स्टूडेंट और टीचर के बीच में हो रहा है तो ये कंसल्टिव रजिस्टर है. और फॉर्मल रजिस्टर क्या है? प्रोफेशनल एकेडमिक्स में, लीगल सेटिंग में, फीचर्स में इसे यूज किया जाता है. कैजुअल इनफॉर्मल रजिस्टर जो दो दोस्तों के बीच में, कलीग्स के बीच में एक रिलैक्स कन्वर्सेशन होगा, वो होगा कैजुअल रजिस्टर. इंटीमेट रजिस्टर क्या होगा? एक रिजर्व प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लोज फैमिली, स्पाउस, बेस्ट फ्रेंड, लव बर्ड्स लाइक दिस. Then comes the next term, lingua franca.
Lingua franca is a shared common language used for the communication between people who speak different native language. मतलब lingua franca दो अलग अलग different language बोलने वाले लोगों के बीच में communication gap एक bridge का काम करेगा. It enables the trade, diplomacy, interaction, often serving as a third language or a simplified mix. English is the most common modern example है ना. अगर साउथ इंडियन का कोई पर्सन आया और नॉर्थ इंडिया का कोई आया और दोनों को ही अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज ही आती है तो उन दोनों में लिंग्वा फ्रैंका बोल के एक लैंग्वेज काम करेगी, वो होगी इंग्लिश. अगर दोनों भी इंग्लिश जानते हैं तो दे प्रेफर यूज एज अ ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज. So some synonyms of the lingua franca. Lingua franca को ही बोलेंगे ब्रिज लैंग्वेज, इसको ही हम बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज, इसको और लिंक लैंग्वेज भी बोला जाएगा. ट्रेड लैंग्वेज मतलब ब्रिज लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज, ट्रेड लैंग्वेज या वर्नाक्युलर लैंग्वेज या लिंगो कोलिक्वल जो आएगा वो क्या होंगे, सिनोनिम्स ऑफ, उसको लिंग्वा फ्रैंका ही कहा जाएगा. फिर एक बार पूछा गया था महाराष्ट्र सेट एग्जाम में कोड स्विचिंग क्या है. कोड स्विचिंग एक प्रोसेस है शिफ्टिंग फ्रॉम वन लिंग्विस्टिक कोड अ लैंग्वेज टू द डायलेक्ट अनदर डिपेंडिंग ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट. हम कहाँ हैं, किसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं. सोशल लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजिस्ट की अगर हम रिसर्च इंटरेस्टेडली हम पढ़े उसे, तो कोड स्विचिंग क्या है, पर्टिकुलरली बाय द मेंबर ऑफ द काइंड ऑफ ए पर्सन और वाज ओरिजिनली स्टडीड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एज ए सेकेंड लैंग्वेज इसे पढ़ा जाता है. कोई अगर नेटिव स्पीकर है, स्पेनिश शिफ्टेड फ्रॉम द स्पेनिश, मतलब स्पेनिश बोलते बोलते उसने क्या कर लिया, इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया. इंग्लिश बोलते बोलते वो अपनी, जैसे है ना मैं कभी कभी बीच में बोले जा रही हूँ, आई एम एंड पर्पसफुली स्पीकिंग इन इंग्लिश एज वेल एज ट्रांसलेट इन हिंदी एंड मीनवाइल मेरा जो मदर टंग है मराठी निकल जाता है. तो ये है कोड स्विचिंग. मतलब बोलते बोलते एक आध वर्ड अगर मुझे आई कांट रिमेम्बर दैट टाइम, देन आई यूज माई ओन मदर टंग वर्ड इज देयर. सो इट इज अ कोड स्विचिंग, सडनली टर्न फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. नेक्स्ट इज दैट ब्लेंडिंग. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग क्या है, ब्लेंडिंग एक वर्ड फॉर्मेशन होता है दैट प्रोसेस द क्रिएट द न्यू वर्ड, जिससे हम एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, जिसे हम ब्लेंड करके, जैसे कि बहुत सारे ब्लेंडिंग के वर्ड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो लेट्स सी. यूजुअली द बिगिनिंग ऑफ वन, कभी हम पहले जोड़ लेते हैं कभी बाद में, तो जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड स्मोक. स्मोक कहां से है, स्मोक प्लस फॉग, ये क्या है, ब्लेंडेड वर्ड है. स्मोक प्लस फॉग हो गया स्मोक. ब्रंच क्या है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच हो गया ब्रंच. मोटेल क्या है, मोटार प्लस होटल हो जाएगा मोटेल. ओके, सो दिस इज हाउ. नेक्स्ट, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लेंड्स. स्ट्रक्चर टिपिकली दैट वर्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे बायोग्राफी, फोटोग्राफी दोनों मिलके बन गया बायोपिक. ओके, लाइक दिस. सो कॉमन एग्जांपल लिंग्विस्टिक के ब्लेंडिंग हम देख सकते हैं. ब्लॉग, वेब प्लस लॉग, वेब ब्लॉग बनेगा. चिलैक्स, चिली प्लस रिलैक्स, चिलैक्स. ओके, फैंटेब्यूलस, फैंटास्टिक प्लस फैब्यूलस. देन द हंग्री प्लस एंग्री, हंगेरी. स्पोक, स्पोर्क जो है स्पून और फोक का मिला के स्पोर्क बन जाएगा. सो दिस इज हाउ सम ब्लेंडिंग और उसके एग्जांपल्स. ब्लेंडिंग के बाद हमारा आएगा कॉमन एग्जांपल भी हम इसके देख लेते हैं ब्लेंडिंग के. उसके बाद आएगा हमारा क्लिपिंग. क्लिपिंग क्या होता है, क्लिपिंग इज अ वर्ड फॉर्मेशन. जैसे ब्लेंडिंग होता है, ब्लेंड करके हम क्या करेंगे, दो वर्ड को तोड़ के एक नया वर्ड बनाया हमने. स्मोक है ना, स्मोक और फॉग की डेफिनेशन को, मतलब वर्ड को एक साथ जोड़ के. तो क्लिपिंग उससे थोड़ा अलग होगा. इज लिंग्विस्टिक न्यू वर्ड इज क्रिएटेड, मतलब थोड़ा सा हिस्सा काट के वगैरह ये एक नया वर्ड बन जाएगा. जैसे कि लेबोरेटरी है, उसका हमने सिर्फ लैब बना दिया, ये हो गया क्लिपिंग. मतलब हम आगे पीछे वाला थोड़ा सा कट करेंगे, मतलब हम वर्ड्स को रिड्यूस करेंगे. ब्लेंड में क्या कर रहे थे हम, ब्लेंडिंग और क्लिपिंग थोड़ा सा समझने में भी डिफरेंट है. ब्लेंडिंग में हम क्या कर रहे थे, स्मोक और फॉग को जोड़ के हमने स्मोक बनाया था. ब्रंच हमने किससे बनाया था, ब्रेकफास्ट और लंच को जोड़ के हमने ब्रंच बनाया था. मोटर प्लस होटल को जोड़ के हमने मोटल बनाया था. और अभी हम इसमें क्या करेंगे, क्लिपिंग में हम क्या करेंगे, क्लिपिंग इज क्वाइट डिफरेंट. जैसे कि हम बोल सकते हैं लेबोरेटरी को हमने लैब बोल दिया. ओके, ब्लैक क्लिपिंग मोस्ट कॉमन होता है. रिमूविंग, मतलब जब ब्लैक क्लिपिंग क्या होता है, ब्लैक क्लिपिंग में हम क्या करते हैं, लास्ट का वर्ड ज्यादातर हम हटा देते हैं. जैसे कि जिम्नेशियम है तो हमने शियम हटा दिया, सिर्फ जिम रह गया. मेमोरेंडम में हमने रैंडम हटा दिया, सिर्फ मेमो रह गया. तो ये हो गया ब्लैक क्लिपिंग. ये टाइप्स है. ओके, जब हम बात करते हैं ब्लैक क्लिपिंग 8 टाइप्स है. तो इसमें हम
पीछे वाला भाग हटा देते हैं। फोर क्लिपिंग क्या होता है, हम आगे वाला पार्ट हटा देते हैं। फोर क्लिपिंग में हम क्या करेंगे, अगर जैसे फोन, टेलीफोन, हमने टेली हटा दिया, फोन रह गया। ओके, सो एलिगेटर का हमने गेटर रख दिया, एली हटा दिया। मिडल क्लिपिंग भी होता है, ये भी इसका टाइप है। मिडिल क्लिप में मिडिल का पार्ट हटा देंगे, जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, हमने री भी हटा दिया, रेटर भी हटा दिया, सिर्फ फ्रिज रख दिया। फिर कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग भी होगा, रिमूविंग द पार्ट ऑफ द फ्रॉम मल्टीपल वर्ड्स एंड कंपाउंड, जैसे सिटकॉम, फ्रॉम सिचुएशनल कॉमेडी यानी सिटकॉम, बायोपिक यानी बायोग्राफिकल पिक्चर। सो दिस इज हाउ वी डिड दैट। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट, हम उसको एड बोलते हैं। बाइसिकल को हम बाइक बोलेंगे। एग्जामिनेशन का एग्जाम करेंगे। फैसिमेल का फैक्स करेंगे। मैथमेटिक्स का मैथ्स करेंगे। फोटोग्राफ का फोटो। ये जो है ये सब क्लिपिंग के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉर्फेम क्या है। मॉर्फेम एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है लैंग्वेज की, जिसमें ग्रामर रिप्रेजेंट द वर्ड पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक, है ना, हम एक एक को जोड़ के एक मॉर्फेम बन जाएगा। जैसे बाउंड मॉर्फेम होते हैं और फ्री मॉर्फेम होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इसके। मॉर्फेम के हम बात देख लेंगे। लैंग एंड पेरोल। सो फर्डिनेंड डी शोर का ये कॉन्सेप्ट था, लैंग एंड पेरोल इज फंडामेंटल इन स्ट्रक्चरलिज्म। तो उसमें हम वो लैंग की बात करते हैं और पेरोल की बात करते हैं। तो लैंग क्या है और पेरोल क्या है, पहले तो हम लैंग समझ लेते हैं। लैंग क्या होता है, इट इज द सोशल एब्स्ट्रैक्ट रूल्स गवर्निंग अ लैंग्वेज, जैसे ब्लूप्रिंट है ना, शेयर बाय द ऑल स्पीकर, इट इज स्टेबल, फिक्स, चेंजेस स्लोली ओवर अ टाइम। तो एग्जांपल इंक्लूडिंग जो ग्रामर के रूल्स और सिंटैक्स वोकैबुलरी है, ये क्या है, एक लैंग्वेज का सिस्टम या स्ट्रक्चर, उसे हम लैंग बोलेंगे। तो पेरोल किसे बोलेंगे, पेरोल क्या है, परफॉर्मेंस, इट इज द इंडिविजुअल एक्चुअल कॉन्क्रीट स्पीच एक्ट, राइटिंग और कम्युनिकेशन। इट इज वराइड, पर्सनल एंड डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल वायलेशन। तो लैंग और पेरोल पे फोकस करते हैं फर्डिनेंड डी शोर। लैंग और पेरोल, लैंग एक सिस्टम है लैंग्वेज का, तो पेरोल क्या है, यूजेस या परफॉर्मेंस है। This is how some main ideas I have cleared in this video, that is pidgin or pidgin, creole, lingua franca, code switching, blending, clipping and the morpheme as well as the lang and parole. If you are new on my channel, then like, share and subscribe my channel.